O Lord, my Lord, the strength of my salvation, you have covered my head in the day of battle. For our meditation this morning, I have chosen from the book of Ezekiel, chapter 11, verse 16. Therefore say, Thus says the Lord God, though I remove them far off among the nations, and though I scattered them among the countries, yet I have been a sanctuary to them for a while in the countries where they have gone. Good morning, friends. God is so gracious that He will be with His people through their journey. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is God journeys with His people. This is the time we see in the book of Ezekiel when the people of God, Israel, were being scattered. They were no more in the land which they were promised. They were away for some time. They had to go through hardships. They had to be under the power of the other kings. At this point in time, the Lord talks through His prophet and helps them understand that even though when God had let them to be scattered and moved away from the promised land, God was well with them. In spite of their disobedience, in spite of them dishonoring God, God also journeyed with them. He was right in the midst of them as a sanctuary. When they were scattered, when they were not in their own place, God was in their midst. God journeyed with them. And then God also promises further through Ezekiel that He will bring His people back. Friends, our Lord will certainly let things happen because of our disobedience and because we moved away from the Lord. Yet, God is so gracious that He is in our midst. He is gracious. His presence will never leave us. He will always be with us until He brings us back into a blessed state. While we walk through the toughest, while we walk through the worst, while we are scattered, while we are elsewhere, journeying in all difficulty, the Lord Himself will be in our midst. He will never leave us. He will never forsake us. So when you're walking through the worst, for whatever reasons, remember the Lord will still be in your midst. Gracious God, our Heavenly Father, we thank You, we praise You, honor You. Help us to realize that You are with us always. In Christ's name we pray, Lord. Amen. हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धारकर्ता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एजेकियल अध्याय 11 और उसका 16वां वाक्य। परंतु तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यह कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया तो है, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहराऊंगा। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है कि वे अपने लोगों के साथ उनकी यात्रा में बना रहता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ यात्रा करता है। यिर्मयाह की पुस्तक में हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से इजराइल के लोगों को तितर बितर कर दिया गया था। वे उस जमीन पे नहीं थे जो वादा की जमीन थी। वह उस भूमि से दूर हो गए थे कुछ समय के लिए और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें दूसरे राजाओं के प्रभुता में रहना पड़ा। और ऐसे वक्त पर परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उनसे बातें करता है और उन्हें बताता है कि जबकि परमेश्वर ने उन्हें तितर बितर कर दिया था और वादे की जमीन से दूर कर दिया था, फिर भी परमेश्वर उनके साथ है।
जबकि वे परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, फिर भी परमेश्वर उनके साथ यात्रा में था और एक पवित्र स्थान की तरह परमेश्वर उनके साथ बना रहा। जब वे तितर बितर हो गए थे और अपनी जगह पर नहीं थे, परमेश्वर उनके मध्य में था और परमेश्वर उनके साथ यात्रा कर रहा था। और एजेकियल नबी के द्वारा परमेश्वर ये घोषणा करता है, वे अपने लोगों को वापस लेकर आएगा। मित्रों, परमेश्वर हमारी जिंदगी में कभी कुछ होने देता है क्योंकि हम स्वयं उससे दूर हो जाते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। फिर भी परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है कि वे हमारे मध्य में रहता है। वह अनुग्रहकारी है और उसकी उपस्थिति हमें कभी नहीं छोड़ती और वे निरंतर हमारे साथ बना रहता है जब तक वे हमें एक आशीषित स्थान पर नहीं लौटाता। जब हम सबसे कठिन समय से होकर गुजरते हैं, सबसे बुरे समय से होकर गुजरते हैं, जब हम तितर बितर हो जाते हैं और कहीं और होते हैं और हम यात्रा में होते हैं, परमेश्वर स्वयं हमारे मध्य में होगा। वो हमें कभी त्यागता नहीं, हमें कभी छोड़ता नहीं। इसलिए जब आप सबसे बुरे समय से होकर गुजरते हैं, उसके कारण कोई भी हो, तब याद रखें फिर भी परमेश्वर आपके मध्य में रहेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरा आदर करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को याद रखें कि तू हमारे साथ निरंतर बना रहता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।